हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड, एफएमई की यूनिट नंबर थर्ड, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड देन एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज, or we can say, in refrigeration we have to maintain the lower temperature. So in refrigeration we have to maintain lower temperature continuously with respect to surroundings. So in case of refrigeration, we have to maintain the lower temperature continuously with respect to surroundings. So for that we have to remove out the heat from the enclosed space. Suppose we have to reduce the temperature of this space. Then how we can maintain the refrigeration inside this space? We have to remove the heat from this space. We have to remove the heat contained by the air enclosed in this space. और इस हीट को रिमूव करने के बाद we can do refrigeration. Now in air conditioning we have to control the parameters of air. We have to condition the air. So which parameters we have to control? So in air conditioning we will also maintain the lower temperature, but the difference is that in air conditioning we have to control the parameters of air also. So which parameters? So first parameter we have to control temperature. This temperature is also controlled in refrigeration and it is also controlled in air conditioning. So in air conditioning, temperature is maintained lower as compared to surrounding. Likewise in case of refrigeration. But beside this, we have to maintain other parameters like humidity, like relative humidity. So we have to control the humidity, relative humidity of the air. Another parameter like air velocity. So these parameters also controlled in case of air conditioning, but these parameters like relative humidity and air velocity, so these parameters will not control in case of refrigeration. So this is the difference between refrigeration and air conditioning. Now I will discuss next topic, refrigerating effect. So what is refrigerating effect? You can see. Now refrigerating effect. तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉसियस स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सो व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट? यू कैन सी क्लॉसियस स्टेटमेंट this is second law of thermodynamics. So in case of Clausius statements, you can see
this is temperature T1 and this is the temperature T2, and T1 temperature is less than T2. So what Clausius statement will say? So Clausius statement will say that we cannot transfer the energy from lower temperature to higher temperature without using any external energy input. You can see temperature T1 is less than T2 and we cannot transfer the energy from lower temperature. The energy from the lower temperature, you can see Q1, and the energy that is rejected at temperature T2, and what is the value? Q2. So we cannot transfer the energy from lower temperature to higher temperature without any external energy input. This is Clausius statement. So the concept of refrigerator will depend on the Clausius statement. So now how we can define the रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा जो है Q1 होता है, इट मीन्स दैट द हीट एक्सट्रैक्टेड एट लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर हमारा क्या है? T1. ठीक है, और ये T1 और T2 हमारे जो है टेम्परेचर्स हैं. T1 हमारा टेम्परेचर है जिसपे लोअर टेम्परेचर पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज द लोअर टेम्परेचर, and T2 is the temperature at which heat rejection will take place. So if we take the example of refrigerator, domestic refrigerator, in evaporator lower temperature is observed, and in case of if we talk about T2, in condenser you will observe temperature T2. So to transfer the heat from lower temperature to higher temperature, we require external energy input, and this external energy input in the form of electrical energy, and this electrical energy is supplied in the compressor. So जब हम कंप्रेसर को एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी हमारा ये जो सिस्टम है वो वर्क करेगा. तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो हमारी हीट है जो कि लोअर टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट हो रही है. तो यहां जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो Q1 है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड एट लोअर टेम्परेचर. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड एट लोअर टेम्परेचर, एंड दिस लोअर टेम्परेचर इज अचीव्ड इन द इवेपोरेटर ऑफ द रेफ्रिजरेटर. जो रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर हमारा अचीव होता है दैट इज द लोअर टेम्परेचर. हाँ, तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, T1 हमारा लोअर टेम्परेचर है. T1 वो टेम्परेचर है जिसपे हमारी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम दी स्टोरेज स्पेस. जहां हमें कूलिंग करनी है, जहां हमें रेफ्रिजरेशन करना है, जहां लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उस स्पेस से हमें हीट को रिमूव करना पड़ेगा. तो Q1 हमारी जो है वो हीट है जो कि हमने स्टोरेज स्पेस से रिमूव की है, जिससे कि हमारे स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर, या कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैबिनेट का जो टेम्परेचर है उसको हमने रिड्यूस किया है. ठीक है ना, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है, उसको कम किया है. ठीक है ना. और T2 इज द टेम्परेचर. ये T2 हमारा वो टेम्परेचर है जिस पे हीट रिजेक्शन हो रहा है. तो रेफ्रिजरेटर के बैक में आप लोगों ने देखा होगा कंडेंसर होता है जहां हीट रिजेक्शन होता है. ठीक है ना.
तो Q2 हमारी वो हीट है जो कि कंडेंसर के थ्रू हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि हम हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट को ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा। और रेफ्रिजरेटर के केस में जो वर्क इनपुट हम देते हैं वो कंप्रेसर को देते हैं। कंप्रेसर को हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो हमारा जो है ये साइकिल जो है चलती रहती है और रेफ्रिजरेटर से हमें कूलिंग मिलती रहती है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो Q1 है। ये Q1 वो है कि जो कि हमारी हीट लोअर टेम्परेचर पे हमने एक्सट्रैक्ट की है। कहां से की है? वो कैबिनेट में, जो कैबिनेट है हमारी रेफ्रिजरेटर की, जहां हमें कूलिंग करनी है और आइस को जो है हमें फ्रीज करना, आइस फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। तो ये है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है रिमूव की उस रेफ्रिजरेटर कैबिनेट से, ठीक है ना। सो यू कैन सी Q1 is the amount of heat extracted at lower temperature. तो आज इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, दैट इज टेक RS फॉर